Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 15.1 of your chapter probability. This chapter is from your 10th mathematics NCERT. So let's start. देखिए क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ना. यहाँ पर वन होगा इनका, ये क्या है? नॉट ई, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, तो इन दोनों की एडिशन क्या होती है? वन होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश डैश जीरो. सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, बिकॉज उन्होंने कैन नॉट हैपन कहा है, सो दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, मतलब यहाँ पर वन होगा, एंड सच इवेंट कॉल्ड श्योर इवेंट. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट वन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन or equal to 0 and less than or equal to 1. Next, which of the following experiments have equally likely outcomes, and explain. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. So it is not an equally likely outcomes because car will not start only when it is out of order. Then a player attempts to shoot a basketball and she or he shoots or misses the shot. It is not an equally likely outcomes because this game depends on many factors. A trial is made to answer a true false question. अभी true false question है, ठीक है. The answer is right or wrong. तो यहाँ पर दो ही आउटकम्स है, तो एक right या तो wrong. So that's why equally likely outcome because both have equal chance to happen. And a baby is born, it is a boy or girl. So it is an equally likely outcome because both have equal chances to happen. Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? So when we toss a coin, the outcomes head and tail are equally likely. So the result of an individual coin toss is completely unpredictable. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट? कौन सा यहाँ पर हो सकता है? 15%, 0.7, 2/3. करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट्स अ निगेटिव -1.5 बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होता है. इफ पी ऑफ ई इज इक्वल 0.05, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? 1 माइनस 0.05 करना है, सो दैट्स वाई वी गेट 0.95. आसान था क्वेश्चन ना. यस, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इन टू द बैग. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर है क्या? देर इज अ नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0. एंड अ लेमन फ्लेवर कैंडी, ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर इन द बैग, सो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेमन फ्लेवर कैंडी इज 1. And the next, it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? So here we have probability of E plus probability of not E is equal to 1. So probability of E plus 0.992 is equal to 1. So 1 minus 0.992 we get 0.008. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at a random. बॉल कैसे लिया है? रैंडमली लिया है, सो फ्रॉम द बैग. सो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड. अभी रेड का क्या हो जाएगा? आउटकम्स कितने टोटल बॉल से? 8 बॉल से, तो 3/8 यहाँ पर रेड के लिए आ गया. नॉट रेड के लिए 5/8 आ जाएगा. करेक्ट, सो 3/8 एंड 5/8 हमें मिल गया. करेक्ट, आसान था ये भी क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन, a box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at a random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? So here is the answer. Number of the red marbles is equal to 5, number of white marbles is equal to 8, number of green marbles is equal to 4. So total number of marbles is equal to 5 plus 8 plus 4, we get 17. So P red marbles is equal to 5/17, P white marbles is equal to 8/17, P not green is equal to 1 minus P of green. क्या हो जाएगा? 1 minus 4/17 जो 13/17 आता है.
A piggy bank contains 150 paisa coins, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin 1 will be a 50 paisa coin, will not be a 5 rupees coin? So here number of 50 पैसा coins 100 rupees, number of 1 rupees coins 50 rupees, 50 coins यहाँ पर आ गए, number of 2 coins rupees 2 coins 20, number of 5 coins 5 rupees coins 10, total number of coins 180. So 50 पैसे coins क्या हो जाएगा probability इसकी 100 upon 180, 5 by 9 आ गया. Not a 5 rupees coin, 1 minus 10 by 180, we get 170 by 180 मतलब 17 by 18. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure number 15.4, ये वाली साइड वाली फिगर. What is the probability that the fish taken out is male fish? Okay, हमें क्या करना है, अभी हमें 5 + 8 होता है 13. So अभी उन्होंने क्या कहा है, मेल फिश के लिए मतलब 5/13 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी. करेक्ट, 5/13. आसान था ये भी क्वेश्चन. Next one, a game of chance consists of a spinning an arrow which comes to raised pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? Okay, तो इसके फर्स्ट 8 के लिए क्या हो जाएगा. सो देखिए 8 के लिए 1/8 आ जाएगा, बिकॉज 8 के लिए एक टाइम 8 आने वाला है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 एक बार ही आएगा. सो दैट्स वाई 1/8. सो एंड ऑड नंबर कौन कौन से, देखिए पी ऑफ ऑड नंबर 4/8 कितने ऑड नंबर है, 1 2 3 4. सो दैट्स वाई 4/8 मतलब 1/2. नंबर ग्रेटर दैन 2, 1 2 3 4 5 6. तो 6/8 मतलब 3/4. एंड नंबर लेस दैन 9, 8/8 मतलब 1 यहाँ पर आ गया. कितना आसान था ना ये क्वेश्चन भी. येस. सो अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एंड ऑड नंबर. सो सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 6 यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 3 आ जाएंगे फॉर फर्स्ट कंडीशन प्राइम नंबर्स के लिए, बिकॉज 2 3 5 आर द प्राइम नंबर. सो 3/6 यहाँ पर मतलब 1/2 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ गई. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द सेकेंड वन, 2 to 6 में आने वाले नंबर्स 3 4 5, तो यहाँ पर भी 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा. एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन ऑड नंबर्स 1 3 5 ऑड नंबर्स, 3/6 मतलब यहाँ पर भी हाफ ही आ जाएगा. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of hearts, a spade, a queen of a diamonds. इसके लिए आपको कार्ड्स में कौन कौन से नंबर्स के कितने कार्ड्स होते हैं, यहाँ पर टाइप्स उसके क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल शफल्ड डेक इज़ 52. फर्स्ट वन रेड कलर के लिए कितना हो जाएगा, PA किंग कहा है. सो दैट्स वाई 2 बाई, क्योंकि रेड कलर के 2 ही किंग होते हैं. सो 2/52 मतलब 1/26. फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड यहाँ पर 12 आ जाएंगे, बिकॉज 4 4 4 4 3 3. देखिए 3 किंग क्वीन एंड जैक यहाँ पर 3 आ गए. सो 3 4 ज़ा 12. सो 12/52 मतलब 3/13 आ जाएंगे. रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, रेड फेस कार्ड उन्होंने क्या कहा है, रेड फेस कार्ड, तो 3 and 3 6 हो जाएंगे. तो 6/52 3/26 यहाँ पर आ गया. नाउ द जैक ऑफ हार्ट्स कहा है और उसका जैक का है मतलब 1 सिंगल, तो 1/52. स्पेड 13/52 1/4 आ जाएगा. क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड में कितने क्वीन होते हैं, 1 ही होता है, तो 1/52 यहाँ पर आ गया. 5 कार्ड्स, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pick up is an ace and queen?
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 है, देर आर 5 कार्ड्स ओनली. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, यहाँ पर आ जाएगा ओनली 1 क्वीन इज देयर, सो दैट्स वाई P 1/5. एंड सेकेंड के लिए कीपिंग क्वीन असाइड, क्वीन को बाहर निकाला तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर लेफ्ट 4 हो जाएंगे. सो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे. सो फर्स्ट के लिए फॉर एस के लिए 1/4 बिकॉज एक एस है और क्वीन नहीं है क्योंकि क्वीन को हमने निकाल दिया है बाहर. सो 0/4 मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट वन, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is a defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स 12 है, नंबर ऑफ गुड पेन्स यहाँ पर 132 है. टोटल नंबर ऑफ पेन्स यहाँ पर 12 + 132 मतलब 144. P द पेन इज गुड वन 132/144 जो आ गया यहाँ पर 11/12. Next 17, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? And second one, suppose the bulb is drawn in, first one is defective and it is not replaced. Now one bulb is drawn at a random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 4. P गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू 4/20 मतलब 1/5 आ जाएगा. व्हेन वन गुड बल्ब इज केप्ट असाइड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पर 19 हो गए. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर नंबर ऑफ गुड बल्ब्स यहाँ पर 15 हो गए. सो P प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब 15/19 हो जाएगा. A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at a random from the box, find the probability that it bears first one a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. Total numbers of discs 90. P probability यहाँ पर क्या आ जाएगी 81/90 आ जाएगा. सो 9/10. Here the perfect square numbers 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 and 81. उसके बाद 100, 121, देन 144, देन आगे सो ऑन. ओके 169, 196, 225. आपको सभी स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी कितने आ जाएगी 9/90 मतलब 1/10. नंबर डिविजिबल बाय 5 कितने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. सो प्रोबेबिलिटी 80/90 मतलब 1/5. A child has a die whose 6 face shown the letters are given below A B C D E A. एंड यहाँ पर देखिए 2 बार A आ चुका है. सो डाई इज थ्रोन वंस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D? अभी A कितने बार आ सकता है 2 बार आ सकता है. सो 2/1 2 3 4 5 6 आ जाएगा. 2/6 मतलब 1/3 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की. एंड सेकंड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 1 आ जाएगा बिकॉज D 1 टाइम ही आ जाता है. 1/6 यहाँ पर आ गया. Suppose you drop a die at a random on the rectangular region shown in a figure. What is the probability that it will land inside the circle? So students यहाँ पर देखिए suppose उन्होंने क्या कहा है die at a random on a rectangular region shown in a figure. So 15.6. What is the probability that is will land inside the circle with a diameter 1 meter? So देखिए यहाँ पर 3 मीटर इसकी लेंथ है यानी यहाँ पर 2 मीटर इसकी विड्थ है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल πr² मतलब π/4 मीटर स्क्वायर. सो P प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा. अभी पाई की वैल्यू डालिए ना या तो मत डालिए कोई बात नहीं. सो π/4/6 मतलब π/24 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ओके. सो 3.14 डिवाइडेड बाय 24 करके भी आप इसे निकाल सकते हो. वो 0 पॉइंट में आ जाएगा. इससे जगह पाई में ही वैल्यू रखिए कोई बात नहीं. A lot consists of 144 balls pens of which 20 are defective and other are good. Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at a random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. Okay. So total number of ball pens 144, number of defective ball pens 20, then number of good pens 144 minus 20 124 आ गए. So P getting a good pen 124/144 जो 31/36 आ गया. So probability of getting defective pen क्या हो जाएगा 1 minus P getting a good pen. So 1 minus 31/36 कितना आ जाएगा 5/36.
सो क्वेश्चन नंबर 22, रेफर टू एग्जाम्पल 13 जो पिछली बार हुआ था. सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें कंप्लीट करना है. देखिए यहाँ पर इवेंट सम ऑन टू डाइस यहाँ पर दिया है एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/36 फर्स्ट की दिया. अभी 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए हमें निकालना है. तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर, तो फर्स्ट के लिए 1, 2 एंड 2, 1 आर द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग द सम 3. सो दैट्स वाई 2/36 यहाँ पर आ जाएगा 1/18. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 36 यहाँ पर. देन उसके बाद 3 के लिए तो यहाँ पर हो गया. देन 4 के लिए तो 1, 3, 2, 3, 1 आर द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ सम 4 आ जाएगा यहाँ पर. सो 3/36 यहाँ पर आ गया, तो 1/12 आ गया इसका आंसर. देन 5 के लिए 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. सो वी गेट यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आ जाएंगे. तो 4/36 मतलब 1/9. तो यहाँ पर आ जाएंगे सम 1/9. देन 6 के लिए कितने आ जाएगा 1, 5, 2, 4, 3/3, 4, 2, 5, 1. तो यहाँ पर 5/36 आ जाएगा 5/36. देन 7 के लिए कितना हो जाएगा. 7 के लिए देखिए अभी सम 7 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. 6/36 मतलब 1/6 यहाँ पर आ गया. 8 के लिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. 9 के लिए देखिए 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3 आर द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग सम 9. तो यहाँ पर 4/36 मतलब 1/9 यहाँ पर आ गया. एंड देन फॉर 10 के लिए 4, 6, 5, and 6, 4 are the favorable events of getting the sum 10. So P यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा. यहाँ पर 3/36 इज इक्वल टू 1/12. एंड देन यहाँ पर 1/12 हो गया. एंड देन यहाँ पर 5, 6, 6, 5 आर द फेवरेबल इवेंट्स ऑफ गेटिंग द सम 11. सो 2/36 मतलब 1/18. A student argues that there are 11 possible outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1, 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. No, because the outcomes as 11 different sum are not equally likely. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. So total outcomes are HHH, TTT, HHT, HTH, THHH, TTH, THT, HTT. So there are 8 outcomes. Hanif will lose the game if outcomes are HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT. So favorable outcomes is equal to 6. P यहाँ पर आ जाता है हनीफ विल लूज द गेम. 6/8 मतलब 3/4 यहाँ पर आ गया. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time and 5 will come up at least once? So throwing a die twice, the throwing 2 dice simultaneously is treated as the same experiment. ध्यान में रखना है, okay? So that's why total outcomes कितने हो जाएंगे 36. So number of outcomes in favor of 5 is 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6 मतलब 11 आ जाएंगे. So P will not come up either time 25/36 and P will come up at least once 11/36. तो 25 कैसे आ गया 36 minus 11 करके. चलो, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. If the die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number and an even number. Therefore, a probability of getting an odd number is half. So देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम फर्स्ट के लिए HH, THT, TH एंड TT 4 आ जाएंगे. P यहाँ पर 1/4. फॉर 2 heads, फॉर 2 tails 1/4 एंड फॉर P getting 1 head and 1 tail 2/4 मतलब half. So hence the argument is incorrect. टोटल पॉसिबल आउटकम सेकंड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 आ गया. P गेटिंग ऑड नंबर 3/6 मतलब हाफ. P गेटिंग इवन नंबर 3/6 मतलब 1/2 हाफ. चलो, तो यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई. तो मिलते हैं अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टैंडर्ड में. ओके, तो आपका ये लास्ट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी. तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे. तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए.
सभी क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस पे फोकस करिए। जो भी आपको सोल्यूशन दिए हैं ऑलरेडी, आपको आपके हाथ में सभी सोल्यूशन दिए, बट आपको वैसे के वैसे कॉपी नहीं करना है, ठीक है। खुद से ट्राई करिए, तभी आप अच्छे से स्कोर करेंगे। मैथ्स इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ओके। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बट आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको ये आसान लगेगा। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। थैंक यू।